ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਨਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੰਝੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਪੂਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਵਾਰਤਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੰਝੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੜਾਅ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਮੀਲ ਦਾ, 19-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨਾਮਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸਾ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
तो जो कहता मैं कीर्तन च बैठते उदों भी वो गल मेरे मन अंदर चलती रहिंदी कि मैं डॉक्टर हाँ। जो मैं कहते सिमरन करता सिमरन भी चलता होंदा पर नाले भी गल चलती होंदी कि मैं आम यात्रु नहीं, मैं तो डॉक्टर हाँ। इदा कहते भी 1 2 3 4 5वें पड़ाव तक पहुँच गए तो उत्थों गांह तुरे गए, वाहगुरू वाहगुरू भी करी जाने, पर नाल मन अंदरों ख्याल नहीं जाता कि मैं कला यात्रु नहीं, मैं तो डॉक्टर भी हाँ। कोई रहनुमाई करने वाला नहीं सी नाल। तो कहते जदों पैदल तुरदे तुरदे गांह पैदल का सफ़र शुरू होया तो पैदल तुरद्या तुरद्या एक 17-18 साल की बच्ची जिहड़ी नाल सी उहनूं ठेडा वज गया तो ठुड्डा खा के वो उलर के डिग पई। डिग्गी इस तरीके नाल कि उहदी एक बांह मचकोड़ी गई तो दूजी बांह दे उत्ते खुरंड आ गया, मास लथ गया उत्थों। हुण उहदा ख्याल डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी नाल रखना चाहिए, वह आवाज़ मारी गई, सद्दिया गया इन्हों। सो उहदा जिहड़े पैर के उत्ते भी सट लगी सी, जिथे पैर ते सट लगी सी पैर मचकोड़िया गया सी, उत्थे पैर के उत्ते डॉक्टर साहब ने मालिश भी की, उत्थे कुछ जिहड़ी पेन किलर क्रीम हुंदी वो भी लाती गई, उन्होंने पेन किलर गोलियां जिहड़ियां खाण लई भी दित्तियां, जिहड़ा खुरंड आया सी, जिहड़ा जख्म आया सी उहदे उत्ते कीटाणुनाशक जिहड़ी दवाई वो भी लाई गई, पर दवाई खाण लई तां देनी सी। सो उहदी जख्म धोता, उहदी पट्टी की। पर डॉक्टर नेकी जी कहते बड़ी बहादुर कुड़ी सी, बेशक पैर भी मचकोड़िया गया सी, बांह मचकोड़ी गई सी, बांह ते खुरंड भी लगे सी, जख्म सी डूंगा, खून भी वगया सीगा, सारा कुछ। पर जदों डॉक्टर साहब उहदी सारी सेवा कर रहे सी, उन्हें सारा कुछ हसद्या हसद्या बर्दाश्त किया। बहादुर कुड़ी सी हसद्या हसद्या उन्हें दर्द बर्दाश्त किया, नहीं तो पैर मचकोड़न दे उत्ते बांह मचकोड़न दे उत्ते चीका मारते हैं लोग। उन्हें इहो जी चीका भी कोई नहीं मारिया, पट्टी बड़ी तसल्ली ना कराई तो चेहरे के उत्ते अपने चेहरे के उत्तों हासे वाली जिहड़ी गल सी जान नहीं दी। 17-18 साल की कुड़ी आ। कहता जद मैं सारी सेवा करके बच्ची दी ते उहदे पट्टियां वगैरह बन के उहदे मलम वगैरह ला के उन्होंने दवाई वगैरह दे के जो जान लगा तो जो तो उठ्या तो उन्हें उठते तो मेरे जो मैं तुरन लगा तो मेरा कुर्ता फड़ लिया डॉक्टर नेकी जी उस बच्ची ने 17-18 साल की बच्ची ने कुर्ता फड़ लिया तो उन्होंने रोक लिया डॉक्टर नेकी जी तो जो उन्हें रोकया तो उहदियां अखां चों उदों हंझू वगे। पहला कोई नहीं, पट्टी हो रही आ, मलम हो रही आ, जख्म साफ किया जा रहा है, धोता जा रहा है, बांह ठीक की जा रही है, मचकोड़ी ही बांह ते पट्टी पैर ते पट्टी की जा रही है। जो ज़्यादा दर्द होता समा सी उदों नहीं, जो सारी पट्टियां वगैरह करके डॉक्टर नेकी जी तुरन लगे तो तुरद्यां दा उन्हों दा कुर्ता फड़ लिया तो कुर्ता फड़ के हंझू उहदियां अखां 'च एकदम वह तुरे तो आखन लगी काश डॉक्टर साहब तुसीं मेरे पिता होंदे, काश डॉक्टर साहब जी तुसीं मेरे पिता होंदे। ते डॉक्टर उन्होंने कहते कि बेटी तू मेरे बच्चों के हान दियाँ, तू मेरी बेटी जैसी हाँ, तो मैं भी तेरे पिता समान ही हाँ, तेरे पिता वर्गा ही हाँ बिल्कुल। तेनों कहन दी की लोड़ पै गई कि मैं तेरा पिता होंदा, मैं तेरे पिता वर्गा ही हाँ, पिता जिहा ही हाँ। जो कहना मैं तेरे पिता वर्गा ही हाँ तो कुड़ी ने भुब्बा निकल गई, भुब्बा मार के कहने लगी यूं ना आखो, रब करे किसी का भी पिता मेरे पिता वर्गा ना होवे, इंज ना आखो। कितना दर्द होगा उन्होंने शब्द उहदे शब्दों च, भुब्बा मार के क्या उन्हें, इंज ना आखो डॉक्टर साहब किसी बदनसीब का भी पिता मेरे पिता वर्गा ना होवे। दर्द डॉक्टर जी ने उन्होंने दर्द एकदम महसूस किया तो कोल बैठ गया, कहता बेटा गल की, क्यों तेरे पिता वर्गा, किसी बदनसीब का पिता भी तेरे पिता वर्गा क्यों ना होवे। वो कहने लगी मेरे पिता नूं जां तां शराब चाहिदी हुंदी है ते जां फिर वो जो हुक्म करी जान उन्हां दी सेवा मननी करी चलो, वो चाहिदा हुंदा। उन्हां मुरे अख उखे चक के नहीं देखा जा सकता, उन्हां दी गल नूं इनकार नहीं किया जा सकता। दहशत है साढ़े सारे परिवार के उत्ते, शराब पी के जो मर्जी जिन्हों मर्जी कुट देंदे ने, मेरी मां नूं भी बच्चों नूं भी सारिआं नूं पूरी दहशत पई हुई है।
शराबी ने। दहशत परिवार का माहौल, डर है, सहम है। मेरे पिता वर्गा तो किसी का पिता ना होवे। ਉਹਦੇ दर्द ਨੂੰ डॉक्टर नेकी जी ने महसूस किया। वो कहती जो मर्जी 2 थप्पड़ जड़ देंगे ने, माड़ी जी गल करो तो 2 थप्पड़, जो माड़ी जी गल करो 2 थप्पड़। आम तौर पर पिता पुत्रां ते तां हत्थ उठा लेंदा शायद, पर धीआं ते कदी हत्थ नहीं उठाउंदा, पर कहंदी धीआं नूं नहीं बख्शदा, हत्थ थप्पड़ पैंदे ने। दर्द ਨੂੰ महसूस करके डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी बच्ची के कोल बैठ गए। बेटा ना, अपने पिता के प्यार नूं अपने दिल तो पार ना जान दे, दिल तो बाहर ना कढ़। अपने पिता के प्यार नूं, पिता के प्यार नूं पिता के प्यार वांगू रख। पर एक गल, गुरु साहब दे लड़ लग जा, बहादुर बच्ची बन, डर ना किसी तो, सत्कार कर, पर अपने दल के अंदरों सारा डर ते सहम कर दे। नेकी जी ने बड़े विश्वास नाल गल आखी। वो कहती जो मैं डिग्गी सी ना, तुसीं मेरे पिता नूं जानदे नहीं, उहदे सुभाਅ नूं नहीं जानदे। जो मैं डिग्गी सी मचकोड़ा खा के, जो मेरी लत्त मचकोड़ी गई, जो मेरी बांह मचकोड़ी गई, तो जो मेरा पिता इत्थे कोल हुंदा तो मैनूं पता की कहना सी, 2 थप्पड़ मेरे कस के मारने से उत्तों होर डिग्गी दे, ते नाल कहना सी की गल अखां फुट्टियां होईयां, देख के नहीं तुर हुंदा। इदां दे भी पिता हुंदे आ। अखां फुट्टियां होईयां, देख के नहीं तुर हुंदा, डिग्गी क्यों? तो फिर जे मैं मचकोड़ी हुई लत्त दे नाल लगड़ांदी हुई तुरदी भी ना, लत्त मचकोड़ी हुई, बांह मचकोड़ी हुई, बांह चों जख्म आया, खून आया, जे मैं इदां तुरदी भी ते लंगड़ा के तुर होना सी, ते उहने मैनूं पिता ने पता की कहना सीगा, तू मचल ना मार, मैं सारे बहाने जानदा इहो जिहा, ते मैं भी जानदा इन्हां बहानिਆਂ ਨੂੰ भन्नी दा किदां, ते 2 थप्पड़ मेरे होर लग जाने सी। इदां दा मेरा पिता। नेकी ने दर्द महसूस किया। डॉक्टर नेकी जी ने कोल बैठ गया, बच्ची के सिर ते हथ रखिया, बेटा दलेर हो, डरना, गुरु के नाम का आउट आसरा लै, गुरु के लड़ लग जा, पर मन के अंदरों सत्कार ना जान दई। एक गल याद रखी, जिहड़ा बंदा गुरु के लड़ लगा होवे, गुरु का ओट आसरा लएगा, वह बहादुर हुंदा है, तो उहदे मेरे कोई शराबी नहीं खड़ सकता, बेशक शराबी कोई भी होवे। वो तो मेरे खड़ नहीं सकेगा। तेरे अंदर सच की ताकत होनी चाहिए है। जो ने गल ध्यान नाल सुनी, तो बच्ची डॉक्टर नेकी ने पता नहीं किस अंदाज च आख्या होगा, वो बच्ची उस दर्दां दे विचों एकदम उठी, उठ के बैठदे उन्हें जकारा छड्डिया, बोले सोने हाल। आले दुआले संगत सी सुन रही सी, उन्हें आख्या सत श्री अकाल, जकारे का जवाब दे दिता। दूजे दिन शाम नूं अमृत संचार सी, जथे ने अमृत संचार करना सी, हेमकुंड साहब फाउंडेशन ने अमृत संचार करना सी, इंतजाम पहला ही किया होया सी। तो बच्ची ने भी डॉक्टर नेकी ने प्रेरणा दी सी, गुरु के लड़ लग जाते, उन्हें भी अमृत छक लिया। अमृत संचार होया, उन्हें भी अमृत छक लिया, तो अमृत छक के आ गए डॉक्टर नेकी जी को आके बड़े भरोसे नाल कह लगी, मैं गुरु गोबिंद सिंह अपना पिता बना आई आ, अज तो मैनूं पता लग गया गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है, गुरु गोबिंद सिंह मेरा पिता है। अज तो मैनूं दस दिता पंजां प्यारिਆਂ ने कि तू गुरु गोबिंद सिंह की पुत्री है, तू माता साहिब कौर की पुत्री है, तू आनंदपुर की वासी है। अज तो गुरु गोबिंद सिंह मेरा पिता है, गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है, मैं सारे डर ला दिते, हुण मैं किसी तो डर नहीं लगी। मेरे गुरु का मुकाबला कौन कर सकता? एक गल बच्ची ने अमृत संचार करने तो बाद कहती। इसे गल का दूजा पासा बाद दूजा जिहड़ा हिस्सा, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी कहता कि मैं अपने हस्पताल दे विच सां, दिल्ली दे विच 8-9 महीने बाद वो एक दिन बच्ची मेरे हस्पताल च आई, तो मैनू देख के मैनू मिलण आ गई। हुण उसका चेहरा हंसू हंसू कर रहा सी, कोई उदासी नहीं चेहरे उत्ते, हंसू हंसू चेहरा कर लिया सी। उसने आके दवा दवा आके घुट के डॉक्टर साहब ने जिदा पिता नूं गलवकड़ी पाई दी, गलवकड़ी पा ली।
डॉक्टर ने उसके सिर ते हथ फेरिया, बच्ची खुश रह, गुरु तेरे साथ हमेशा अंग संग रहे। तो बच्ची कहने लगी हुण तो गुरु मेरे अंग संग रहिंदा ही है, मैं गुरु गोबिंद सिंह की बच्ची बन के आई हाँ अमृत छक के, हुण गुरु हमेशा मेरे अंग संग रहिंदा है। मेरे जदों मैं अमृत छकिया सी मेरे अंदरले आकाश तो उदों ही बदल हटने शुरू हो गए सन, उदों मैं निरभौ हो गई सी, उदों मैं निडर हो गई सी। अमृत शक्ति शक्ति उदों ही गुरु की शक्ति मेरे नाल आ गई सी। हेमकुंड की यात्रा तो बाद जिस दिन मैं घर पहुंची तो घर आके मैं घर च आउंदे पहले दिन ऐलान कर दिता, सारे परिवार दे विच बैठ के, पिता भी कोल है, तो पिता नूं संबोधन होकर गल खास तौर पर कही कि मैं गुरु गोबिंद सिंह की बच्ची बन के आई हाँ, मैं अमृत छक के आई हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी की दसी हुई जी अमृत संचार की रहत है वो धारण करके आई हाँ, ककार धारण करके आई हाँ। तो इस घर दे विच हुण करैत वर्गी कोई गल नहीं होगी, इस घर च कोई नशा नहीं चलेगा, कि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पिता बन के आप आ वसिया है, मैं उसकी पुत्री बन गई हाँ। गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है, पिता बन के मेरे नाल है, मैं उसकी पुत्री बन के आई हाँ, गुरु गोबिंद सिंह की शक्तियां मेरे नाल आईयां ने। इस घर दे विच हुण कोई करैत नहीं होएगी, कोई नशा नहीं वरतेगा। प्यो ने इस गल नूं बड़ी वड्डी चैलेंज समझ लिया कि वंगार रही है बच्ची, 17-18 साल की बच्ची पिता नूं वंगार रही है। वो कहंदा तू अगे तो मैं बाहरों पी के आउंदा, अज मैं घर पीवांगा। उन्हें बोतल लैके आया, घर आके मेज के उत्ते बोतल खोल ली, गिलास कोल रखिया, तो कुड़ी ने आख्या मैं तो कहा सी पिता तैनूं भी इस घर च हुण कोई नशा नहीं चलेगा। मैं गुरु गोबिंद सिंह की पुत्री बन के आई हाँ, अमृत छक के आई हाँ, हुण इस घर च नशा नहीं चलन देंगे। पिता ने दबका मारिया, अगों लाल अखां कीतियां, वो कुड़ी भज के रसोई च गई, तो जिहड़ा चिमटा सी जिन्हें नाल आम तौर पर अग के गोटे वगैरह बदले जाते हैं चिमटे के, वो चिमटा चक के लियाई, उन्हें लिया के बोतल दे मारिया, पहला बोतल तोड़ी फिर गिलास तोड़िया। पता नहीं कितों शक्ति आ गई, वो कहनी मेरे को डॉक्टर साहब नूं दस रही है हस्पताल दे विच 9 महीने बाद जाके अचनचेती मिलन दे उत्ते कि पता नहीं कितों शक्ति आ गई कि मैं बोतल भी तोड़ दी, जिहड़ी मैं थर थर कंबदी हुंदी सी, मैं गिलास भी तोड़ दिता। तो पिता भी अग बबूला हो गया, उन्हें हथ चक्या चपेड़ मारन दे लई, थप्पड़ चक्या, थप्पड़ मारन लगा सी, ते पर एक हाथ च चिमटा ते दूजी हाथ नाल पिता दा हथ मोरे फड़ लिया। आखन लगी नहीं पिता जी हुण नहीं, मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पुत्री हाँ, गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है। कि गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़न दा साहस है तुहाडे कोल? कि गुरु गोबिंद सिंह दा मुकाबला कर सकते हो? नहीं। कि जदों मैं गुरु साहब दा नाम लिया, पता नहीं किहड़े जलवे च, पता नहीं किहड़े अंदाज च, पता नहीं किवें मेरे मूँह शब्द निकल गया अंदरों, मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पुत्री बन के आई, अमृत छक के आई हाँ। मैनूं आख्या पंजां पैरां ने मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पुत्री हाँ, मैं माता साहिब कौर दी पुत्री हाँ। गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल ने, तुहाडे कोल है ताकत, तुहाडे कोल है साहस, तुहाडे कोल इन्नी शक्ति है, गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़ सकते हो तुसीं। जदों मैं पिता दे मोहरे हथ फड़ के गल कही ना, तो पता नहीं मेरी अखां दे विच की जलाओ सी, पता नहीं की जलवा सी, पता नहीं कितना कोई वीर रस सी। पिता दा हथ कंबण लग पिया, वो निम्मू झुरी जो होके मंजे दे उत्ते बैठ गया। बैठिया बैठिया ने फिर अपना सिर अपने दो हत्थां 'च ले लिया, तो जदों निम्मू झुनी दा पा के बैठे सन, तो मैनूं अपने आप नूं पिता ते तरस आया। तो मैं उस तरस की भावना दे विच, उस दया की भावना दे अंदर पता नहीं किहो जिहा जलवा सी, मैं अपने पिता नूं आख्या 5 वारी वाहिगुरू कहो, जुड़ो उस वाहिगुरू नाल, घट्टो घट्ट 5 वारी वाहिगुरू कहो। तो कहनी मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कहा, तो 5 वारी मेरे पिछे फिर मेरे पिता ने वाहिगुरू कह आख दिता। तो जो पिता ने 5 वारी वाहिगुरू आख दिता ना, तो मेरे को पिता का वो झुकिया हुआ सिर देख नहीं होया, तो मैं अपने कमरे च आ गई। कुछ चिर बाद पिता भी मेरे कमरे च आ गया। मैं लम्मी पई हुई सी, शाम का समा सी। जो पिता कमरे च आया, तो उन्हें आके पिता ने अगे मेरे सिर ते अगे मैनूं चपेड़ मारदा हुंदा सी। अज उसको इन्नी हिम्मत भी नहीं सी कि मेरे सिर नूं पड़ोस सके, सो मेरी पवांदी वाले बने खड़े हो गया, तो मेरे पैरों नूं हथ लाउण लगा। मैं कहा पिता जी ये कर दिओ, पैरों नूं क्यों हथ ला रहे हो? तुसीं वड्डे हो, तुसीं पिता हो, तुसीं सिर ते हथ रखो।
वो कहता नहीं पुत्र, मैं तेरे सिर ते हथ रखन जोगा नहीं, मैं शराबी कबाबी हाँ। तेरे अंदर गुरु गोबिंद सिंह वसिया होया है, तेरिया अखां दे विचों मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दा जलवा नज़र आ रहा सी, तेरे अंदरों मैनूं गुरु की ताकत बोलती नज़र आ रही सी। तेरे उस ताकत नूं देख के, तेरे उस जलाओ नूं देख के, तेरे उस अखां दे रोब नूं देख के, उस वीरस नूं देख के मेरा अंदर कम उठिया। मैं तेरे पैरों नूं नहीं हथ ला रहा, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह दे पैरों नूं हथ ला रहा। मैं तो शक्ति नूं नमस्कार कर रहा जिहड़ी अमृतधारी सिख दे अंदर आ वसदी है। जो महसूस करे कि मैं अज तो गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र आ, अज तो मेरी माता साहिब कौर है, मैनूं बख्श दे, मेरी बच्ची है, तू गुरु की पुत्री बन के आई है, मैनूं कोई हक नहीं मैं तेरे ते हथ चक्कां। तू गुरु की पुत्री बन के आई है, तू करैतां दे नाल लड़ रही है, तो मैनूं कोई हक नहीं मैं इस घर दे विच कोई करैत करां। इदां कर, अपने गुरु दे कोल मैनूं लै जा, जिथों तू अमृत छकिया मैनूं भी अमृत छका दे, पंजां पैरां दे कोल लै जा, मैनूं भी गुरु वाला बना दे, मेरे ते रहमतां कर दे। तो बच्ची ने यह गल दसी डॉक्टर नेकी जी नूं, ते नाल आख्या उस दिन तो पिता जी ने भी अमृत छक लिया, फिर माता जी ने भी छक लिया, सारा परिवार अमृतधारी हो गया। घर की कायाकल्प हो गई। जिथे हमेशा डर हुंदा सी, जिथे हमेशा सहम हुंदा सी, जिथे कंगाली वरती हुई सी, उत्थे शराब निकल गई, नशा निकल गया। पिता काम ते भी ध्यान देन लग पिया, परिवार दे विच खुशी आ गई। सारा परिवार एक मुठ इकट्ठा होकर प्रशादा छकदा है, इकट्ठा होकर जाप करता है, इकट्ठे होकर रहरास दा पाठ करते हैं, इकट्ठे होकर नितनेम करते हैं। घर दे विच खुशियां आ गई, खेड़ा आ गया, अज होर कल होर, ते अजे 9 महीने 8-9 महीने होए ने, परिवार की कायाकल्प हुई हुई है। घर परिवार का रंग बदल गया है। इदां लगता है कि सच्ची गुरु गोबिंद सिंह ते उहदियां सारियां शक्तियां घर परिवार च आके वस गई होण। गुरु दी शक्तियां बड़ियां अगम ने। गुरु आ वसिया साडे घर दे विच, जिथे गुरु का जाप करदा है कीता जांदा है, जिथे गुरु का नितनेम कीता जांदा है, जिथे गुरु की बाणी दे जाप कीता जांदा है, जिथे गुरु के नाम का सिमरन कीता जांदा, उत्थे गुरु आके वस भी जांदा है। और डॉक्टर नेकी जी नूं जदों ये गल वो बच्ची आख रही सी, तो डॉक्टर नेकी जी लिखते ने, किताब है जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझे। वो कहते मैं बच्ची वाल देख रहा सा, तो उहदे चेहरे वाल देखदियां देखदियां, उहदे जलाओ वाल देखदियां देखदियां, उहदे आत्म विश्वास वाल देखदियां देखदियां, उहदे गुरु दे भरोसे उत्ते देखदियां देखदियां मेरे अंदर दी भी मैल धोती जा रही सी। मैनूं इदां लगदा सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की शक्ति के दर्शन कर रहा, प्रत्यक्ष शक्ति, ज़ाहिर शक्ति, रहमतां वाली शक्ति, जिहदे मेरे कोई विकारी नहीं खड़ सकता, जिहदे मेरे कोई शराबी नहीं खड़ सकता, जिहदे मेरे कोई जवारिया नहीं खड़ सकता, जिहदे मेरे कोई मैल खड़ ही नहीं सकती। तो डॉक्टर नेकी जी कहते हैं कि मेरे भी हथ बदो बदी जुड़ गया है। मैं बच्ची नूं नमस्कार करने लिए अजे हथ जोड़ ही दिया, तो बच्ची ने कहा नहीं, तुसीं हो मैनूं इस पासे पाउण वाले, तुसीं मेरे सिर ते हथ रखो, तुसीं मेरे ते बख्शिश करो, रहमतां करो, जिद्दां जुड़ी हाँ सतगुरु दे नाल उद्दां जुड़ी रहां। ये असीस दिओ, तुसीं वड्डे हो। ये कांड है जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझे किताब का एक चैप्टर है। मैं बेनती करांगा आप सब नूं कि मैं किताब दे विच तकरीबन 100 तो उत्ते शायद चैप्टर रहे हो जाए, हर गल दे विच क्रम जाए, पर मैं 2 चैप्टर, एक पिछले दे विच एपीसोड दे, एक हुण आप सब नाल साझा इस करके कीता है कि किताब पढ़न दी साडे मन दे अंदर चाहत पैदा हो सके। सतगुरु रहमता करे, सानू अपने आप नाल जोड़ ले, अपनी बख्शिशां नाल जोड़ ले, असीं भी गुरु गोबिंद सिंह नूं पिता जान के, उहदे पुत्र बन के, उहदे धीआं बन के, उन्होंने अपने नाल नाल अपने अंग संग जिहड़ा साडे नाल रह रही, उहदी बख्शिश रह रही, उहदी शक्ति साडे नाल नाल रह रही है, ये गल असीं भी महसूस कर सकीए। इन्ने शब्दां दे नाल खिमा जाचना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।